Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Dewas Sadiq and I'm your class 12 मैथमेटिक्स टीचर. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3. तो आज चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3. Evaluate the following integrals. Question number 1 is integral minus 2x over square root of 4 minus x square dx. अब इसका करते हैं solution. Given that integral minus 2x over square root of 4 minus x square dx, this is equal to integral 4 minus x square raised to the power minus 1 over 2 into minus 2x dx. We know that integral f of x raised to the power n into f prime of x dx, this is equal to f of x raised to the power n plus 1 over n plus 1 plus c. अब यहाँ पे देखा जा सकता है f of x की जगह पे है हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वेयर और 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है माइनस 2x. तो हमारे पास अब आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1, देन आ जाएगा प्लस c. This is equal to 4 minus x square raised to the power 1 over 2 divided by 1 over 2 plus c, and this is equal to 2 into 4 minus x square raised to the power 1 over 2 plus c, and we can write it as 2 into square root of 4 minus x square plus c. Therefore, integration of minus 2x over square root of 4 minus x square, this is equal to 2 into square root of 4 minus x square plus c. So this is the required result. Next है question number 2, integral dx over x square plus 4x plus 13. इसका करते हैं solution. Given that integral 1 over x square plus 4x plus 13 dx, this is equal to integral 1 over x square plus 4x. अब यहाँ पे 13 की जगह हम लिख देंगे 4 plus 9 dx. This is equal to integral 1 over x square plus 4x plus 4 plus 9 dx, and this is equal to integral 1 over x square plus 4x plus 4 की जगह आ जाएगा x plus 2 whole square plus 9 की जगह आ जाएगा 3 square और साथ आ जाएगा dx. We know that d over dx of tan inverse of x, this is equal to 1 over 1 plus x square. इसी तरह अगर tan inverse of x over a का डेरिवेटिव फाइंड किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा a over a square plus x square. So this implies that integration of 1 over a square plus x square is equal to 1 over a into tan inverse of x over a plus c. अब यहाँ पे हमारे पास a की जगह पे है 3 और x की जगह पे है x plus 2. तो हमारे पास अब आ जाएगा 1 over 3 into tan inverse of x plus 2 over 3 plus c. Therefore, integral dx over x square plus 4x plus 13, this is equal to
1 over 3 into tan inverse of x plus 2 over 3 plus c. So this is the final result. Next है question number 3, integral x square over 4 plus x square dx. अब इसका करते हैं solution. Given that integral x square over 4 plus x square dx. अब यहाँ पे x square over 4 plus x square एक improper fraction है, तो सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से इस improper fraction को proper fraction में कन्वर्ट करेंगे. x square over 4 plus x square is an improper fraction, so अब हमारे पास जो डिवाइडेंड है दैट इज एक्स स्क्वायर एंड द डिवाइजर इज 4 प्लस एक्स स्क्वायर. तो सबसे पहले 4 प्लस एक्स स्क्वायर को हम 1 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4. साइंस चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा -4. सो इंटेग्रल एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx, this is equal to integral 1 minus 4 over 4 plus x square dx. This is equal to integral 1 dx minus integral 4 over 4 plus x square dx. This is equal to integral 1 dx minus 4 into 1 over 4 plus x square dx. This is equal to integral 1 dx minus 4 into 1 over 2 square plus x square dx. Using integral 1 over a square plus x square dx, this is equal to 1 over a into tan inverse of x over a plus c. अब यहाँ पे a की जगह पे है हमारे पास 2, तो हमारे पास अब आ जाएगा x minus 4 into 1 over 2 into tan inverse of x over 2, then आ जाएगा plus c. This is equal to x minus 2 into tan inverse of x over 2 plus c. Hence, integration of x square over 4 plus x square, this is equal to x minus 2 into tan inverse of x over 2 plus c. So this is the final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इंटेग्रल 1 over x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x dx. अब इसका करते हैं सोल्यूशन. गिवन दैट इंटेग्रल 1 over x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x dx, दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम लिख सकते हैं इंटेग्रल 1 over x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ x dx. Now we know that integral f prime of x over f of x dx, this is equal to natural log of f of x plus c. अब यहाँ पे भी देखा जा सकता है हमारे पास f of x की जगह पे है natural log of x और natural log of x का डेरिवेटिव होता है 1 over x, और यहाँ पे 1 over x न्यूमरेटर में हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास अब आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 over x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c. So this is the final result. Next है question number 5,
integral e raised to the power x divided by e raised to the power x plus 3 dx. अब इसका करते हैं सोल्यूशन. इंटेग्रल e raised to the power x over e raised to the power x plus 3 dx. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास डिनोमिनेटर में ये जो e raised to the power x plus 3 है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है which is e raised to the power x. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e raised to the power x plus 3 plus c. Therefore, integration of e raised to the power x over e raised to the power x plus 3, this is equal to natural log of e raised to the power x plus 3 plus c. So this is the required result. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इंटेग्रल x plus b over x square plus 2bx plus c raised to the power 1 over 2 dx. सॉल्यूशन करते हैं आप. Given that integral x plus b over x square plus 2bx plus c raised to the power 1 over 2 dx. This is equal to integral x square plus 2bx plus c raised to the power minus 1 over 2 into x plus b dx. अब यहाँ पे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 1 over 2 into x square plus 2bx plus c raised to the power minus 1 over 2 into 2 into x plus b dx. This is equal to 1 over 2 into integral x square plus 2bx plus c raised to the power minus 1 over 2 into 2x plus 2b dx. अब यहाँ पे देखा जा सकता है x square plus 2bx plus c का जो डेरिवेटिव है वो है 2x plus 2b और यहाँ पे 2x plus 2b मल्टीप्लाई हो रहा है x square plus 2bx plus c raised to the power minus 1 over 2 के साथ. तो this is equal to 1 over 2 into x square plus 2bx plus c raised to the power minus 1 over 2 plus 1 over minus 1 over 2 plus 1 then आ जाएगा plus c1. अब यहाँ पे ये जो c1 है ये एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिए c को इसीलिए यूज़ नहीं कर रहे बिकॉज c हमारे पास ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो इसी वजह से हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट को c1 के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज इक्वल टू 1 over 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c रेज टू द पावर 1 over 2 डिवाइडेड बाय 1 over 2 देन आ जाएगा प्लस c1. दिस इज इक्वल टू 1 over 2 इंटू 2 into x square plus 2bx plus c raised to the power 1 over 2 plus c1. 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c देन आ जाएगा प्लस c1. Therefore integral x plus b over x square plus 2bx plus c raised to the power 1 over 2 dx. This is equal to square root of x square plus 2bx plus c plus c1. So this is the final and required result. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इंटेग्रल secant square x over square root of tan x dx. अब इसका करते हैं सॉल्यूशन. गिवन दैट इंटेग्रल secant square x over square root of tan x dx. This is equal to integral tan x raised to the power minus 1 over 2 into secant
square x into dx. Now we know that the derivative of tan x with respect to x is secant square x. तो यहाँ पे tan x का डेरिवेटिव जो कि है secant square x मल्टीप्लाई हो रहा है tan x रेज़ टू द पावर -1/2 के साथ. तो हमारे पास अब आ जाएगा tan x रेज़ टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1, देन आ जाएगा प्लस c. दिस इज इक्वल टू tan x रेज़ टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c, and this is equal to 2 into tan x raised to the power 1/2 plus c. This is equal to 2 into square root of tan x plus c. Therefore, integral secant square x over square root of tan x dx, this is equal to 2 into square root of tan x plus c. So this is the final and required result. Next है question number 8. Question number 8 का part A है show that integral dx over square root of x square minus a square is equal to natural log of x plus square root of x square minus a square plus c. अब इसका करते हैं solution. अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब यहाँ पे हमने करनी है सब्स्टिट्यूशन. तो हम अब x को कंसीडर कर लेंगे a इंटू सीकेंट थीटा के इक्वल. दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो हमारे पास आ जाएगा dx ओवर डी थीटा. दिस इज इक्वल टू a इंटू सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा. अब यहाँ से हमारे पास dx आ जाएगा a इंटू सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा के इक्वल. तो हमारे पास अब इंटेग्रल dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा इंटेग्रल a इंटू सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर. This is equal to integral a into secant theta into tan theta into d theta over square root of a square into secant square theta minus 1. This is equal to integral a into secant theta into tan theta into d theta over a into square root of secant square theta minus 1. अब यहाँ पे a के साथ हो जाएगा कैंसिल and we know that secant square theta minus 1 this is equal to tan square theta. तो हमारे पास अब आ जाएगा इंटेग्रल secant थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा. स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास अब आ जाएगा इंटेग्रल सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा ओवर tan थीटा डी थीटा. अब यहाँ पे tan थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल सीकेंट थीटा डी थीटा. वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ secant x is
नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। तो हमारे पास सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा प्लस C1। और यहाँ पे ये जो C1 है ये एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। दिस इज इक्वेशन 1। अब हमने x को ज्यूम किया हुआ है a इंटू सीकेंट थीटा के इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास सीकेंट थीटा आ जाएगा x ओवर a के इक्वल। अब हमने फाइंड करना है tan थीटा को। tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारे पास अब tan थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1। tan थीटा दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। सो tan theta this is equal to square root of x square minus a square over a. Now 1 becomes natural log of secant theta की जगह आ जाएगा x over a plus tan theta की जगह आ जाएगा square root of x square minus a square over a, then आ जाएगा plus C1। This is equal to natural log of x plus square root of x square minus a square over a plus C1। अब हम यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस C1। अब यहाँ पे ये जो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a है ये कांस्टेंट है एंड C1 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो हम अब माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस C1 को c के इक्वल पुट कर देते हैं। तो हमारे पास अब आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c, and this is equal to the right hand side. Hence integral dx over square root of x square minus a square, this is equal to natural log of x plus square root of x square minus a square plus c. So this is the required result. Next step part B, show that integral square root of a square minus x square dx is equal to a square over 2 into sine inverse of x over a plus x over 2 into square root of a square minus x square plus c. अब इसका करते हैं solution। तो यहाँ पे अब हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नेक्स्ट हम एक्स को अज्यूम करेंगे ए इंटू साइन थीटा के इक्वल। दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा दिस इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास डी एक्स आ जाएगा ए इंटू कॉस थीटा डी थीटा के इक्वल। अब हमारे पास इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह आ जाएगा ए इंटू कॉस थीटा डी थीटा। दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ a square into 1 minus sine square theta into a into cos theta d theta.
This is equal to integral a into square root of 1 minus sine square theta into a into cos theta d theta. 1 minus sine square theta, this is equal to cos square theta. अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट कर देंगे cos स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा इंटू a इंटू cos थीटा d थीटा. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब आ जाएगा इंटेग्रल a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा. दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू इंटेग्रल कॉस स्क्वायर थीटा इंटू d theta. Since cos square theta, this is equal to 1 plus cos 2 theta over 2. तो हमारे पास अब आ जाएगा a स्क्वायर इंटू इंटेग्रल 1 plus cos 2 theta over 2 d theta. This is equal to a square over 2 into integral 1 plus cos 2 theta d theta. This is equal to a square over 2 into integral 1 d theta plus integral cos 2 theta d theta. This is equal to a square over 2 into 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगी थीटा, देन आ जाएगा प्लस, और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगी साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव है 2, तो साइन 2 थीटा डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ, देन आ जाएगा प्लस c. We know that sin 2 theta, this is equal to 2 into sin theta cos theta. अब यहाँ पे sin 2 थीटा की जगह हम पुट कर देंगे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हमारे पास अब आ जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 इंटू थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर 2 प्लस c. 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 इंटू थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस c. This is equation 1. As x is equal to a इंटू साइन थीटा, तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा x ओवर a के इक्वल, and this implies that theta is equal to sine inverse of x over a. अब हमारे पास थीटा और साइन थीटा आ चुके हैं, अब हमें रिक्वायर्ड है cos थीटा. cos थीटा is equal to square root of 1 minus sine square theta. So cos थीटा हमारे पास अब आ जाएगा square root of 1 minus x square over a square. Cos theta, this is equal to square root of a square minus x square over a. Now 1 becomes a square over 2 into थीटा की जगह पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a, देन आ जाएगा प्लस साइन थीटा की जगह आ जाएगा x ओवर a, और cos थीटा की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर a, देन आ जाएगा प्लस c. दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस c. This is equal to a square over 2 into sine inverse of x over a plus a square over 2 into x into square root of
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस सी। ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर plus c, and this is equal to the right hand side. Therefore, integral square root of a square minus x square dx, this is equal to a square over 2 into sine inverse of x over a plus x over 2 into square root of a square minus x square plus c. So this is the final and required result. Next है question number 9, integral dx over 1 plus x square raised to the power 3 over 2. अब हमने इस इंटेग्रल को evaluate करना है, तो इसका करते हैं अब solution. Given that integral dx over 1 plus x square raised to the power 3 over 2. अब यहाँ पे देखा जा सकता है डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे अब हम x को अज्यूम करेंगे tan थीटा के इक्वल. लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा dx ओवर d थीटा, दिस इज इक्वल टू tan थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास dx आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा के इक्वल. अब यहाँ पे x की जगह हमने पुट कर देना है tan थीटा और dx की जगह पुट कर देना है सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा. सो इंटेग्रल dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर raised to the power 3 over 2, this is equal to integral secant square theta d theta over 1 plus tan square theta raised to the power 3 over 2. Now we know that secant square theta is equal to 1 plus tan square theta. तो अब हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर देंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा रेज़ टू द पावर 3 over 2. ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब आ जाएगा इंटेग्रल सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंट क्यूब थीटा डी थीटा. सीकेंट स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अब आ जाएगा 1 ओवर सीकेंट थीटा डी थीटा. 1 ओवर सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, सो इंटेग्रल कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा. अब हम जानते हैं कॉस थीटा की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है साइन थीटा प्लस सी. सो दिस इज इक्वेशन 1. एज एक्स को हमने अज्यूम किया हुआ है tan थीटा के इक्वल. अब हमने फाइंड करना है साइन थीटा को, तो हमारे पास जो tan थीटा है वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल, तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा tan थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल. साइन थीटा दिस इज इक्वल टू tan थीटा और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर सीकेंट थीटा. नाउ वी नो दैट सीकेंट थीटा दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो अब यहाँ पे सीकेंट थीटा की जगह पुट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा दिस इज इक्वल टू tan थीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं tan थीटा x के इक्वल है, तो यहाँ पे tan थीटा की जगह हमने x पुट कर देना है, तो हमारे पास sin थीटा आ जाएगा x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ 1 becomes x over square root of 1 plus x square, then आ जाएगा plus c. Therefore integral dx over 1 plus x square raised to the power 3 over 2, this is equal to x over square root of 1 plus x square plus c. So this is the final and required result. Next है question number 10. Integral 1 over 1 plus x square into tan inverse of x dx. अब हमने given integral की evaluation करनी है. So given that integral 1 over 1 plus x square into tan inverse of x dx. This is equal to integral 1 over 1 plus x square divided by tan inverse of x dx. We know that integration of f prime of x over f of x, this is equal to natural log of f of x plus c. अब यहाँ पे हमारे पास f of x है tan इनवर्स ऑफ x, और tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। Therefore integral 1 over 1 plus x square into tan inverse of x dx, this is equal to natural log of tan inverse of x plus c. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 को क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।